Dean, Faculty of Commerce, the lady who has been able to host 2 university-wide activity in a span of a week from the faculty, which has largely been in a dormant state. Head Department of Business Administration, Professor Sangeeta Sahay, who since she took over has, I would say, completely transformed the department. Dean Student Welfare and Vice Chancellor Designate, Professor Poonam Tandon. Let us have a round of clap for her. Our Dean Faculty of Engineering, Professor A.K. Singh Sahab. Head Department of Economics, Professor Vinod Singh Ji. This is, I believe, the second program in a span of a week since he took over as Head of Department. Head of Department Commerce, Professor Ram Milan. For you, it is a daunting task to match the scale and scope and span of Professor Avdesh Tripathi, who has been very, very active during his term in the department as head, who is currently also Program Director for MBA Finance and Accounts. Our Head Department of Social Work, the department that is celebrating its golden jubilee year, and very soon they are going to have a very, very huge international event. Head Department of Geography, our very own Professor Durgesh Ji, OSD Institute of Management Sciences, and Professor of Law, very distinguished Professor of Law, Professor Vinita Ji. Our Chief Proctor, Professor Rakesh Dwivedi Ji. We can understand for an institution with a student strength of close to 20,000, how difficult it is for him to spare time for academics and academic activities. Our Chief Provost, in charge of 18 hostels in the university campus. Our Director Sanskritiki, Professor Madhurima Lal Ji. Former Registrar, Professor Sanjay Medhavi Ji, and also a very distinguished Professor of Management. Director of Shodhpeeth, that is entrusted with the responsibility of promoting entrepreneurship, Professor Sunita Ji. I can recognize so many faces, so if I name each one, I'm surely going to miss, so I'm not going to do that. All the esteemed faculty colleagues and my very, very dear students. You know, fate of special lectures, do you know? Don't you know? In my Faculty of Management Studies, I felt nostalgic when I saw my faculty. There are 2 exit gates. So whenever special lectures or guest lectures used to be organized, during my term as a student also, I remember, there was one sitting dean, one former dean. So after lunch when students used to come, बच्चे आ जाते थे faculty, तो when they used to go to the class, they were told, सुबह से बताते नहीं थे कि आज guest lecture है, आज कोई स्पेशल लेक्चर है, वो लंच के बाद आएंगे ही नहीं. फिर वो आके जब बताया तो वो भागने को चलते थे, तो दोनों एक एक गेट पे खड़े हो जाते थे. आई मिस प्रोफेसर अवस्थी, who's our Dean Faculty of Arts. I could just see him. So वो दोनों लोग एक ही गेट पे खड़े हो जाते थे. अभी बच्चा भागने को आए तो कहाँ जा रहे हो, चलो सेमिनार में. So fate of special lectures are a little difficult, are in a state of perplexion for both the parties. For the speaker, उसको लगता है जबरदस्ती बैठा के हम सुना रहे किसी को जो सुनना नहीं चाहता. For the student, उसको लगता है मेरा इसमें क्या relevance है, am I at all interested in this? But I'll tell you, my love and affection for CRM got generated with such a lecture. Once a person who was working in the field of customer relationship management
he came to our faculty during my student time. मुझे अच्छी तरह याद है, there was a seminar that was hosted. The then vice chancellor was called to inaugurate, and he was a mining engineer. और आप जानते हैं वाइस चांसलर को हर प्रोग्राम में बुलाते हैं. उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसका सब्जेक्ट चाहे माइनिंग हो, उसको मेडिकल साइंस के भी सेमिनार में प्रिसाइड ओवर कराते हैं, उसको सोशल साइंस में भी कराते हैं, उसको लिटरेचर में भी कराते हैं, उसको एग्रीकल्चर में भी कराते हैं. सो ही सेड, लुक, अबाउट CRM आई ओनली नो कोल्ड रोल मिल्स. कोल्ड, वो पतले तार लोहे के बनते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड रोल मिल्स. तो क्या माई एक्सपोजर टू CRM इज कोल्ड रोल मिल्स एंड नॉट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. But then I found a person who was delivering a talk on customer relationship management. That fascinated me so much that was the day when I decided I'll pursue my career in this field. And of late, I went to industry and then came back to academics, then pursued my research in CRM, and of late, a lot of publications, researches, consultancy, and a lot of activities in the field of customer relationship management took place. So if you are actually serious about the concept and the topic, it is certainly going to contribute. What is important is to have faith in what is going towards you. Another very good thing about institution like this and a hall filled with students like this is that we have students from engineering, we have students from commerce, we have students from economics, we have students from management, we have students from tourism. I missed my tourism lady, Professor Anupma. She is an excellent in whatever she does, and her visit, I believe, I was told that it was fabulous and very, very fruitful. So when this idea of celebrating an entrepreneurship week came to us, we thought of preparing it the way a complete program, I mean a complete course मैंने समझते हैं पूरा पेपर, एक पूरा पेपर में जो भी कंटेंट होना चाहिए, we tried to present it before the students. The only drawback with you all would have been that probably you might not have been exposed to all the aspects, because कोई इंजीनियरिंग में है तो मैनेजमेंट में नहीं है, मैनेजमेंट वाला कॉमर्स में नहीं गया, कॉमर्स वाला इकोनॉमिक्स में नहीं गया, इकोनॉमिक्स वाला टूरिज्म में नहीं गया. So that might have acted as a handicap. Otherwise, had you taken this in totality, and the entire development, the entire proceeding shall be placed on the university YouTube channel. I would request, अभी तक तो पूनम जी देख रहे हैं उसको, तो I hope she'll continue. तो you all will be able to see. वो सारी recordings have been done. That will be placed on the university YouTube channel, and you can all view that and get the benefit. Now, program like this is actually intended to sensitize it, to orient you, to create awareness on different aspects of entrepreneurship. एक इकोनॉमिक्स की थियरी है जो कहती है entrepreneurship is the remedy for majority of economic ills. दुनिया की ज्यादातर आर्थिक समस्याओं का समाधान उद्यमिता में लाया करता है, निहित है. अब ये कहानी है क्या? और पहला प्रश्न, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड इज योर वाइस चांसलर हैज बीन कॉल्ड. इज ही द टाइप ऑफ वाइस चांसलर जो CRM को कोल्ड रोल मिल्स कहता है? वो एंटरप्रेन्योरशिप पे लेक्चर कर रहा है और वो खुद तो एंटरप्रेन्योर है नहीं. देन हाउ कन्विंसिंग माई डिलिबरेशन विल बी टू द स्टूडेंट्स. हमारी बात से आप कितनी वाकफियत रखेंगे, कितनी सहमति दर्शाएंगे, ये एक प्रश्न आपके मन में स्वाभाविक रूप से, दिस इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन दैट वुड कम टू यू. बट आई टेल यू व्हाई दिस शुड नॉट बी अ क्वेश्चन. देखिए, की इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? सारे को जानना चाहिए. आप नहीं जानते? हाथ उठाइए. सो क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, यही और कुछ है? हाँ, देखो, लैंड मीन्स, लैंड डज नॉट मीन अ पीस ऑफ लैंड.
लैंड मीन्स बिकॉज अभी प्रॉब्ली संगीता जी वॉज टॉकिंग अबाउट अ कंपनी एन एंटरप्रेन्योर हु हैड कम, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लगा ###.com. Now if such are the name, why? Because this is the next in thing, big thing. And बहुत सारा मेरा हालांकि इस पे थोड़ा एक रिजर्वेशन है, आई थ्रो सम लाइट ऑन दैट एज वेल. बट इस तरह के .com कंपनीज आ रही हैं, फ्लरिश कर रही हैं. आजकल आप मार्केट कैपिटलाइजेशन से टॉप 10 कंपनीज में 9 कंपनीज आर फ्रॉम आईटी कंपनी, आईटी इंडस्ट्री. सो दिस थिंग केम इन. अब तो लैंड उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है. उसका लैपटॉप ही उसका लैंड हो गया. सो लैंड मीन्स ऑफ कोर्स पीस ऑफ लैंड फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज, बट मेजॉरिटी ऑल द रिसोर्सेज दैट कम आउट ऑफ लैंड. नाउ लेबर इज वर्कफोर्स. हाँ, उससे इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स तो हम सब हैं, बट आर वी फिटिंग इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स for the industry? No. Till we possess requisite skill. इसका मतलब land or resources coming out of land, then the skill, third is capital. एक आम मान्यता है, एक आम धारणा है, एक आम विश्वास है, I cannot become an entrepreneur because I do not have ample money. See, this theory I highly disagree with. शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि ये बस बड़े बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं उसकी एंटीथीसिस, देन यू विल बिलीव. देखिए, आई एम एन MBA और बहुत सारे आपके टीचर्स हैं, बहुत सारे देखिए IMS से बैठे हुए हैं इधर, ये निशान जी तक तो इसी में दिख रहे हैं, और पीछे वो बैठी है मैडम कपूर, सब लोग MBA किए हुए. तो स्किल तो होगा, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, IT तो जानते हो. इतने साल से नौकरी कर रहे हैं. रितु मैडम तो ऑस्ट्रेलिया तक घूम के आती, इनका सब एस्टैब्लिशमेंट है, तो पैसे भी होंगे, तो कैपिटल भी है. Land we saw over a period of time hardly remain as a source that important, because the resources, if resources coming out of land has become an input, you can always buy. But none of them are an entrepreneur. Why? Why? Land, labor, capital तो हो गया factor of production. Because we probably grossly lack in the fourth thing, that is the ability to create a productive relationship among land, labor and capital. So पैसे भी हैं, एबिलिटी भी है. भाई मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, IT सब कुछ हम जान रहे हैं, दूसरे को सिखा रहे हैं, हर साल आप लोगों को सिखा रहे हैं. हमारे पास स्किल भी है, कैपिटल भी है, लैंड या रिसोर्स कमिंग आउट ऑफ लैंड भी है, बट दैट एबिलिटी टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है. क्योंकि वो नहीं है, इसलिए हम एंटरप्रेन्योर नहीं है. एंड व्हेन आई एम सेइंग, by far I'm only referring to business entrepreneur. Otherwise there are variety of categories of entrepreneurship, social entrepreneur. हम लोग मालवीय जी को हिंदुस्तान का बहुत महान उद्यमी के रूप में उनका टर्म करते हैं, who has been able to establish such a huge institution. तो अब इसमें what कि क्यों हम नहीं बन पा रहे हैं? आई मीन साया आलोक राय और रितु नारंग और अजय प्रकाश और निशान, ये क्यों नहीं है एंटरप्रेन्योर? और मैडम कपूर. अब इसमें दो चीजें हैं. वन इज कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड इज स्किल. इन व्हाट वी डू देयर आर टू very important things. I may possess skill, but I may not have characteristic. For business to start, and not just to start but also to ensure sustenance, we need certain set of characteristics. तो मान लीजिए हम कहते हैं 3 important traits are required: risk taking, innovation और organization.
तो अब हम बाय नेचर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो नहीं कर सकते। पैसा है उसको गले में डाल। आप लोग ये मास्टर लोग, हम सब कहीं वाइवा लेने के पैसे मिले, क्या किया, बैंक में डाल दिया। अभी तो सब ऐसे ही बैंक में ही आ रहा है। पैसा मिला, कॉपी इवैल्यूएट किया, क्वेश्चन पेपर बनाया, पैसे मिले, बैंक में डाल दिया। बहुत किया, कुछ खर्चा कर दिया, घर में मिठाई लेके चले आए या बच्चे के लिए टॉफी चॉकलेट ले आए, कुछ और पैसे बचा लिए। मुझे याद है ITBHU में मैं कहीं का क्वेश्चन पेपर बनवा रहा था, तो हमारे ITBHU में कंप्यूटर साइंस के एक प्रोफेसर थे, उनसे IT के मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स बनवाए। और पैसे तो आप जानते हैं, वो टाइम लगता है, हर जगह लगता है, यहाँ लगता है, हर जगह लगता है। तो क्वेश्चन, जब कुछ होली आ रही थी मुझे याद है, और वो ऑड सेमेस्टर का पेपर रहा होगा, तो दिसंबर जनवरी में बनवाया होगा उन्होंने। फिर आगे मुझसे फरवरी के आसपास तगादा कर रहे हैं, कैसा है वो हमारा पैसा आ जाता तो फिर बच्चों को हम सोच रहे थे कि होली में कपड़े करें। यार प्रोफेसर है, इतनी सैलरी मिल रही है, ये बच्चे के कपड़े होली के इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर के पैसे नहीं मिल रहे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या नहीं है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लिख लीजिए, डिपार्टमेंट जाके या घर जाके सोचिएगा कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट रिस्क विथ अनसर्टेनिटी। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आप सोचिएगा। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, इज इट रिस्क और अनसर्टेनिटी। तो खैर, अभी मान लो आपको घर बुला के पिताजी रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने 3 बच्चे थे, उन्होंने कहा हमको 30 लाख मिले, 10-10 लाख रुपए बांट दिए, क्या करोगे? बैंक में जमा कर दोगे, या यू ट्राई टू डू समथिंग, पुट इट इनटू सम फॉर्म where you are able to extract more, but that depends on the risk appetite of different individuals. अब सवाल ये है कि skills can be imparted, but can characteristics also be infused? जैसे मैं कहूं रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, क्या बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते? ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी नहीं है, क्या सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। इनोवेशन का आपको फ्लेयर नहीं है, सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, सिखा सकते हैं। इवन रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर नहीं सिखा सकते तो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ डिसिप्लिन वुड नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। एंड टुडे वर्ल्ड वाइड, एज आई सेड, एंटरप्रेन्योरशिप इज ट्रीटेड as a remedy for majority of economic ills. This is not just true in India but equally true across the globe. So there have been some very leading institutions which have been established to assess and inculcate the trait of entrepreneurship among students. दुनिया में कुछ बड़े B schools के नाम आप सुने होंगे, many of you are from management discipline. Kellogg सुना है, हार्वर्ड सुना है, वॉटन सुना है, MIT, स्लोन, यू नो, एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर फेमस फॉर डिफरेंट थिंग्स. एज इट इज वेरी फेमसली सेड, maturity lies in having limited objectives in life. When we have to run the university, अभी एक डिपार्टमेंट का हम सिलेक्शन कर रहे थे, उसमें कोई एक्सपर्ट एक स्पेशलाइजेशन के थे, आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि साहब वो फलां स्पेशलाइजेशन का लिया तो ढिमका का भी लीजिए. हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है तो हम लोग कोशिश करते भाई कोर्स पढ़ाना है सारा, तो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR ऑपरेशन सारा ले लो. बट नॉट ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर इक्वली अप्रिशिएटेड अमंग द टारगेट सेगमेंट इक्वली. तो अगर किसी को दुनिया में बहुत सबसे बेस्ट मार्केटिंग का करियर परस्यू करना है तो वो MIT, स्लोन को प्रेफर नहीं करेगा, वो फिर केलॉग्स जाएगा. अगर फाइनेंस में करियर एस्टैब्लिश करना है तो वो हार्वर्ड प्रेफर करेगा, उतना ही अच्छा लड़का है या लड़की. सो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैव गॉट देयर एक्सपर्टीज लाइंग इनटू सर्टेन डोमेन. इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे एरिया पढ़ाते नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि देयर कोर स्ट्रेंथ लाइज इन सर्टेन स्पेसिफिक area.
सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी इंडिया में EDI वगैरह है. We accordingly, they by design create certain things to inculcate those essentials that are imperative for you all to succeed in that domain of entrepreneurship. And उसका systematic exposure होता है. लाइक कोई एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते होंगे आप में से बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग पहले दिन जाते हैं, तो पहले दिन क्लास में जाएंगे तो आप एक फेमस जेट टेस्ट है, जनरल एंटरप्राइजिंग टेंडेंसी टेस्ट, आपके कराते हैं टीचर्स? नहीं कराते हैं, आप खुद ही कर लीजिए. आपको नेट पे मिल जाएगा, एक क्वेश्चनर है, आप उसकी वैल्यूज के साथ आप उसका असेसमेंट भी खुद कर सकते हैं. दैट विल टेल मी कि एक 100 पॉइंट स्केल पे योर एबिलिटी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर वो 100 में से 90 है कि 100 में से 30 है. अगर 30 है, वो ये भी बताएगा कि अगर इसके नीचे है तो आप छोड़ ही दो कोशिश, लेकिन अगर इसके बीच में है तो वी कैन वर्क अपॉन एंड वी कैन इन्फ्यूज समथिंग एंड देन यू कैन बिकम. अब एक और सवाल है, बड़ा प्रश्न है, इसको भी आप लिख लीजिए और सोचिएगा बाद में. एंटरप्रेन्योर कौन है? पूरा 6 दिन का प्रोग्राम हो रहा है, लेक्चर हो रहे हैं. हु इज एन एंटरप्रेन्योर? डॉक्टर उर्वशी टॉक्ड अबाउट शुम्पीटर. तो शुम्पीटर कहता है कि एंटरप्रेन्योर इज वन हु इनोवेट्स. तो हर बिजनेसमैन क्या एंटरप्रेन्योर है? All the business persons can be termed as an entrepreneur? This we are going to find out. And I'm very happy. I have a young kid back home. He's into class 11th. Not at all interested into modern engineering, medical kind of stream. Hugely fascinated with business and how people are achieving success in respective business. The other day I was discussing with him, and ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन वी सेड कि ठीक है, तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, हम दुकान खोल देंगे, बट क्या वो नहीं करना. आप लाखों करोड़ों रुपए दुकान खोल के कमा सकते हो, हजरतगंज पे दुकान खोल लो और रोज शाम के गल्ले में 5 लाख रुपए आएंगे, बट इसमें हम कर क्या रहे हैं? व्हाट एम आई डूइंग? व्हाट एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग? कहीं का सामान लिया, कुछ मार्जिन पे बात किसी और को दे दिया. सो व्हाट एम आई डूइंग? वेयर एम आई इनटू दिस होल प्रोसेस? So we have got to understand there is a strong difference between businessman and an entrepreneur. And the difference lies in this factor of innovation. Why? Because businesses have been there and have vanished. इसलिए एक सेशन, I don't know if there was anyone who delivered a lecture on unsuccessful entrepreneurs. You should know about unsuccessful entrepreneurs. आप राजदूत मोटरसाइकिल जानते हैं? उनके मालिक नंदास थे, एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर था उनका, अभी कहीं नहीं है. हम लोग यही जानते हैं कि वो अमिताभ बच्चन के समधी हैं, इतना ही जानते हैं. इसलिए नहीं जानते कि उनका कोई प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है. आप थापर्स को जानते हैं? JCT, उनका कोई टेक्सटाइल का भी था. क्रॉम्पटन ग्रीव्स उनका था, which is probably the only venture that is surviving. I don't know if they have still got their share into it. Gone. Usha Group जानते हैं? Rise from Punjab. वो उनकी यहाँ जगदीशपुर में भी फैक्ट्री थी स्टील की. So they were into lot of this thing. I remember अमिताभ जी को देखा तो मुझे याद आया मोदी नगर वाले मोदीज. Nowhere. So you essentially need to know why these business people vanished, because they remained businessmen. That is why we have got to understand the difference between a businessman and an entrepreneur. And for businesses to survive and sustain, it is important to have innovation, which Dr. Urvashi very aptly talked about while she was referring to Schumpeter. There have been several other theories. वो कोई economic theory एक है, J.B. Say की, which says
you shift economic resources from lower productivity to higher productivity. अब एक छोटी सी बात बताते हैं, और मैं बहुत सारे बिजनेस आइडिया से प्ले कर चुका हूँ इतने सालों में। पहले हम लोग छोटे थे तो घर में शादी होती थी, बहुत सारे रिश्तेदार जमा होते थे, तो कोई शादी की सुबह सब्जी लेने जाता, कोई एक हफ्ते पहले मसाला तेल लेने जाता, कोई राशन जुटा के लाता, और फिर एक हलवाई हम लोग अपॉइंट करते, फिर वो सर्विस वाला कोई बाद में हायर होने लगे। अभी ज्यादातर केस में आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स माइट नॉट इवन हैव सीन दिस प्रोसेस। सो व्हाट वी डू, घर में छोटा बर्थडे से लेके बड़ी शादी तक के अरेंजमेंट में वी हायर केटरर्स। उसने क्या किया, लोअर प्रोडक्टिविटी वाले एरिया से हायर प्रोडक्टिविटी उसने हर स्टेज पे वैल्यू ऐड कर दिया। वैल्यू ऐड करने का मतलब उसने कहा, सी दिस होल प्रोसेस, उसने कहा संगीत होगा, मेहंदी होगी, इंगेजमेंट होगा, गोद भराई होगी, यू स्पेंड योर टाइम देयर, नॉट ऑन बाइंग तेल और मसाला और राशन एंड टेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेट मी टेक केयर ऑफ दिस। और हर स्टेज पे आपके टाइम को you pay to me and you enjoy. So what has happened? From lower productivity area से higher productivity area पे गया, उसने कुछ नहीं किया, उसने बाकी सारी चीजों का ओनर्स खुद ले लिया। Now, Zuckerberg said, let us try and identify change, and change आ गया, exploit the opportunity. Yesterday I went to a private university, famous private university, and I used to see these students, वो बड़े स्मार्ट बच्चे, बहुत वेल ड्रेस्ड, उनकी बिल्डिंग बड़ी शानदार, उनका ऑडिटोरियम बड़ा शानदार। फिर मुझे धीरे धीरे, पहले तो आई एम अ मार्केटिंग पर्सन, तो मुझे अफसोस होता था कि ये सब हमारे यहाँ क्यों नहीं है, चाहे ऑडिटोरियम उतना खूबसूरत क्यों नहीं है, या हमारे बच्चे इतने हैंडसम, यू ऑल आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, बट वो सब भी बंदे बड़े स्मार्ट, और देख के शक्ल से लगता था कि ये 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए देने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे यहाँ तो 5,000 रुपए की फीस भी देते हैं बच्चे, और हम अगर 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन लगाए, मैं कुछ एक प्लान कर रहा हूँ अभी, एक 100 रुपए वाली स्कीम है मेरे पास, बट आई एम वेरी वेरी स्केप्टिक कि आई डोंट नो क्या होगा, फिर आप लोग आओगे, नारा लगाओगे और हमारे बोलोगे हम 100 रुपए नहीं देंगे, isn't it? तो ये हमारे पास क्यों नहीं है? बट दे रियलाइज्ड दैट देयर इज अ चेंज टेकिंग प्लेस इन एजुकेशन, दे पोजिशन देमसेल्फ। तो वो BA MA मुझे लगता नहीं पढ़ाते हैं, BA MA BSc MSc BCom MCom शायद पढ़ाते भी ना हो। वो कहते हो आओ हमसे BTech कर लो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट ले लो, एंड वील कॉन्सेंट्रेट। तो हमारा रियल एस्टेट कॉस्ट का रिटर्न देख लो आप। देखो आप, एक हमारे जानने वाले थे बनारस में, तो उनका एक रेस्टोरेंट था, और उसमें वो लोअर मिडिल क्लास रेस्टोरेंट कह लीजिए, जिसमें पनीर, मटर पनीर 65 रुपए 70 रुपए प्लेट की थी। तो मैं भी छोटा मोटा कंसल्टेंसी पहले खुद अपने लेवल पे भी करता था, तो ये अनपेड वाले एक बार मेरे पास ऐसे ही जिक्र किए कि हमारा ये वो हो रहा है, बिजनेस में कुछ बहुत प्रॉफिट नहीं है, और वो कोई AC नहीं, कोई वेटर की वर्दी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा है, आप चाहे तो पहले 5 रुपए पर प्लेट बढ़ा लीजिए। ये बात हम बहुत पुरानी बता रहे हैं, 15 साल पहले की। मैंने कहा चाहे 5 रुपए बढ़ा लीजिए, वो 70 का 75 कर दीजिए, लेकिन उस 5 रुपए एक्स्ट्रा में, और नहीं हो अगर आपको लगता है कि 5 रुपए बढ़ाने से ग्राहक चला जाएगा, तो पनीर का साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए। हमने पूछा एक प्लेट में कितना देते, बोले 8 पीस। तो उनके 8 पीस को 8 पीस रखिए, उसको थोड़ा सा पतला कर दीजिए, सो दैट आपका वो 5 रुपए कॉम्पनसेट हो जाए। लेकिन एक काम तो ये करिए कि आप अपने रेस्टोरेंट में वो 8 आने का एक शीट आएगी जिसपे आपके रेस्टोरेंट का नाम लिखा होगा, और वो कम से कम एक आदमी प्लेट से खाना खा के जाता है, सब्जी तेल गिर जाता है एंड सो ऑन, तो वो कम से कम उसको हटा ले, साफ हो जाता है। अपने स्टाफ को दीजिए थोड़े पैसे की दाढ़ी बना ले, रोज नहा ले, साबुन लगा ले, शैम्पू कर ले, और अगर और पैसे इसी में से निकलेंगे तो आप उसको वर्दी दे दीजिए। वो कहे नहीं, इसमें हमारे ग्राहक भाग जाएंगे।
बढ़ाएंगे। हम हमारे आसपास हम सस्ते दाम का वो ले आएंगे और 35 रुपए थाली वाला उन्होंने शुरू किया। मेरी बात ना मानती हूँ, मैं आपको बताऊं उनका धंधा बंद हो चुका है। वाई आई ट्राई टू टेल हिम कि लोग, कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है तो वो खाना खाने नहीं आता, खाना तो उसके घर में नहीं है, वो एक फैमिली टाइम स्पेंड करने आता है। तो फिर आप उसको एसी नहीं दोगे, उसके घर में तो एसी है नहीं, तो रेस्टोरेंट में इसलिए जा रहा है कि वो एयर कंडीशनर में बैठेगा, साफ सफाई से बैठेगा, उसकी वाइफ को उस दिन खाना नहीं बनाना है, किचन में पसीने नहीं गिराने हैं, उसको अच्छे से थोड़ा डिस्टिंक्ट फ्लेवर मिलेगा, उसको एक अच्छा एम्बियंस मिलेगा, उसको अच्छा म्यूजिक मिलेगा, वो तो आप दे नहीं रहे। तो आप अगर नीचे जाएंगे, बिकॉज मार्केट इज गोइंग अप, दिस वी हैव टू रियलाइज। और इसीलिए आप लोगों ने वो दिन नहीं देखा होगा, हम लोग तो देखें 10 रुपए में सिनेमा का टिकट मिलता था, वो बड़ा बड़ा एग्जॉस्ट और वो ऐसे बड़े बड़े पंखे लगते थे, पहले यहाँ भी लगे थे, इसमें भी पंखे। तो वो दुर्गेश जी कहाँ गए? चले गए। दुर्गेश जी ने जब इसमें एसी लगवाया तो पंखे हटा दिए बड़े वाले। तो क्या हुआ, अब मूवी देखने कोई मूवी देखने नहीं जाता है, वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा रहा है। नाउ इफ अ पर्सन इज गोइंग टू स्पेंड अ लिटिल क्वालिटी टाइम, उसको अच्छा चेयर दे दो, उसको अच्छा ठंडी हवा दे दो, उसको साफ सफाई दे दो, उसको साफ टॉयलेट दे दो। इसलिए वो क्या करता है आपसे, अभी तो मैं तो कई साल बाद एक दिन गया, ये पूनम जी के भड़काने चला गया मैं सिनेमा देखने, शायद 500-600 रुपए में तो पॉपकॉर्न दिया। हम तो नहीं खरीदे, मेरे साथ वो था भतीजा मेरा, तो वो जा खरीद लिया है। तो आप सोचो कि 600 रुपए में पॉपकॉर्न, बाजार में मुझे लगता 1 किलो मक्के का दाम होगा 100-150 रुपए। बट पीपल आर बाइंग बिकॉज यू डू नॉट गो फॉर पॉपकॉर्न, यू आर गोइंग टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। तो उसकी अब उसमें भी हायर एंड चल रहा है, वो 300 रुपए का टिकट मुझे लगता है 1200 रुपए वाले में भी लाइन लग रही है, बिकॉज मार्केट इज शिफ्टिंग ग्रेजुअली। सो यू हैव गॉट टू फाइंड आउट कि what this change is taking place, जो पीटर ड्रकर ने बहुत साल पहले कहा, what this change, where this change is taking place and how are we exploiting this opportunity which is arising out of the change in the marketplace, at the marketplace. But it lies in our ability to create a productive relationship among these things, these factors of production. हम मीनिंगफुल आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं? अब मैं बहुत बार ऐसा सोचता था, छोटे से ही सोचता था कि देखो हमारी मदर इतना बढ़िया अचार बनाती है, और वो बाजार में वो कौन से वाले अचार है, अरोड़ा यहाँ चल रहा है अचार, और बहुत सारे ब्रांडेड अचार है, वो तो अचार वो बेच रहे हैं, हम अपनी मदर का अचार तो नहीं बेच रहे। क्यों? आपके दिमाग में नहीं है कभी? हम लोग छोटे थे तो हमारे यहाँ घर में वो आलू का चिप्स बनता, वो सर्दियों में आलू निकलता है, दाम कम होता है, घर में ही पूरा प्रोसेस करके छत पे सुखाते हैं और उसके बाद थाली में भर के खाते थे। अभी वो आपको मालूम है, वो 20 रुपए का आप लेस खरीदते हैं, उसमें कितने ग्राम होता है? मैं जब लास्ट ध्यान दिया था तो उसमें शायद 67 ग्राम्स थे। अब सोचो 5, 7, 8, 10 रुपए किलो का आलू, हालांकि उसको आप कर दोगे तो उसका वेट कम हो जाएगा, उसमें गैस कंपोनेंट बहुत होता है, लेकिन 67 ग्राम आलू 20 रुपए में मिल रहा है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको नहीं आती? इज इट नॉट अवेलेबल? सो हमने कभी सोचा नहीं वो अचार बनाने की, वो आलू का चिप्स बनाने की। ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, इसमें क्या है? ऐसा क्या है जो हमको आपको, वो ऑफ कोर्स उनका एक फ्लेवर होता है जिसको दे क्लेम कि उनका डिस्टिंक्ट फ्लेवर है। वेल यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर डिस्टिंक्ट फ्लेवर। कार्बन डाइऑक्साइड है, चीनी है, वो फ्लेवर वो आपका भी पिक्यूलियर, वो हर चाट वाला एक फ्लेवर अपना रखता है यूनिक। You can also have one such flavor. But did you ever think of
एंड इफ आई गिव यू अ सिचुएशन 2 वेयर आई से कि भाई हमको 100 किलो आलू का चिप्स दे दो और हम आपको 50 रुपए किलो का पे करेंगे। बाजार में आलू है 5 रुपए किलो, जब नया नया निकलता है, विल यू नॉट डू इट? भाई 100 किलो हम चिप्स मांग रहे हैं आपसे 50 रुपए के रेट से, या जो भी एक रेट म्यूचुअली एग्रीएबल है, या हम कहें कि यही आम का अचार जो आपकी माता जी बनाती हैं आप हमको दे दीजिए, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो। विल यू नॉट डू इट? नाउ दैट यू आर नॉट डूइंग, यू आर फूलिश। नाउ इन सिचुएशन 1 to situation 2, where lies the difference? Difference lies in you are yourself not doing it, but the moment you are getting an assured customer, assured sale, you are doing it. Meaning, the absence lies in assurance of sale. Meaning, difference lies in having access to market. तो अगर आपको मार्केट है, मैं मैनेजमेंट का टीचर हूँ और मेरे पास 50 बच्चे आते हैं और कहते हैं साहब शाम को आपके घर में पढ़ना चाहते हैं, हम सब आपको 500 रुपये देंगे। विल यू टीच देम अनलेस माय यूनिवर्सिटी डज नॉट अलाउ मी? सो विल आई नॉट टीच? वो अकाउंट्स के टीचर हैं अवधेश जी, आपके पास 500,000 रुपये, कोई बच्चे आए 50, तो घर में बोर्ड लगा दें अवधेश क्लासेस। वो खान सर के क्लास की तरह अवधेश सर की क्लास हो जाएगी, और फिर वो 50 अच्छे होंगे तो 50 500 हो जाएंगे। फिर ये अपने जैसे ट्रेन करके 2 3 4 और ले आएंगे और फिर वो कर सकते हैं। फिर इनका अवधेश क्लासेस चल निकलेगा, फिर उसका यूट्यूब लेक्चर लगा देंगे, उसका सब्सक्रिप्शन डाल देंगे, उस पर ऐड आने लगेगा एंड सो ऑन। ये डिफरेंस आ रहा है जब आपके पास ग्राहक आ रहा है। तो अगर एक reactively, if you are waiting for the customer to come to us, can we possess the skill to ourselves develop a set of customer? तो आप चाहे पेटीएम से लेके एयरबीएनबी तक, you think of all these ventures. अभी ओला उबर क्या है? एक ऐप है और कुछ नहीं। ये क्या है? जस्ट एक ऐप है और कुछ भी नहीं। वो हर होटल के बाहर ओयो लिखा हुआ है। होटल के बाहर बहुत लोग सोचते हैं ये ओयो कोई होटल का चेन है, तो एक ऐप है। तो सिर्फ ऐप में बहुत सारे लोग बहुत पैसे कमाए। वी ऑल्सो स्टार्टेड आवर ऐप, समहाउ वी कुड नॉट कमर्शियलाइज इट, यू नो। मैं तो वो सब भी बेच देता, हम आपको बताएं। बहुत बार हम संकोच करते हैं कि लोग मुझे कहेंगे ये वाइस चांसलर बहुत कमर्शियल ओरिएंटेशन का है। नहीं तो हमारे वेबसाइट का हिट ऑलमोस्ट 1 लाख a day है, एंड आई डू नॉट डू इट। मैं उस पर एड फ्लोट करने का बहुत बार मेरा मन करता है, बिकॉज वी आर अ फाइनेंशियल स्टाफ इंस्टीट्यूशन, हमारे पास बहुत पैसे नहीं है। तो हम सोचते हैं उस पर एड चलाते हैं। 1 लाख का विजिट मिलेगा, कोई भी एड ले आएगा। अभी ट्विटर वाले भी पैसे दे रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग इट लार्जली बिकॉज वी ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, सो वी do not want it to be that way. इसलिए there are certain specific set of skills that needs to be imparted by different departments, weaved into your curriculum. Now, marketing अलग पढ़े और entrepreneurial marketing अलग पढ़े, it does not make any sense. So we talk of a term called entrepreneurial competency. Now, what is this entrepreneurial competency? I said there are 3 things that combine for this, and that is knowledge. So a lot of sessions, I'm told, have been on specific things that were adding to the body of knowledge to your mental faculty, and that was in Department of Economics and Institute of Management Sciences. The sessions that they undertook during this week-long event was focused on specific knowledge, like what are the institutional support system, what are the policies for especially MSME, पैसा कहाँ से मिलता है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मस्ट हैव कम, दे माइट हैव टोल्ड यू कि भाई
दिस इज हाउ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, दिस इज हाउ दे आर असेस्ड, दीज आर द पॉइंट्स वेयर आपको फंडिंग डिक्लाइन हो जाता है, एंड देन यहां से इतना पैसा मिलता है, कैपिटल फंडिंग यहां से आती है, ऑपरेशनल फंडिंग यहां से आती है, दिस इज द वे आप इक्विटी और डेट का मिक्स क्या रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, इस साइज का फर्म है तो इतना रखना चाहिए, एंड सो वन इज द सेट ऑफ नॉलेज. Second is specific skills. So if there are engineering students, I would invite you all to move beyond this .coms and think of something where you can yourself make or contribute. And here lies your exclusivity. मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मुझे लगता था, और ईमानदारी से बता रहे हैं, कि जो पीला बल्ब हम लोग के ज़माने में चलता था जब हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे, और फिजिक्स में पढ़े कि साहब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्जन 3-4-5% से ज़्यादा नहीं. फिर लगा कि अगर इसमें, और ट्यूबलाइट में ज़्यादा होता है, तो क्या इसको कर सकते हैं. एंड हम वो बल्ब लेके बहुत दिन इधर उधर टीचर के पास और पड़ोसी के पास और इधर उधर घूमे कि इसमें ऐसा क्या कर दें कि इसमें ये सफ़ेद लाइट देने लगे और इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्जन परसेंटेज बढ़ जाए. कंपनीज जो अपना कर रही थी देखिए, और आज अभी कहीं चलता है, अब गांव में भी नहीं करता है. गवर्नमेंट वेरी अप्रोप्रिएटली उसने वो एलईडी लाइट्स, लाइटिंग इक्विपमेंट्स को सस्ता कर दिया. तो अभी ठीक है, 100 रुपए की जगह 50 रुपए हो गया, 10 रुपए की जगह 50 रुपए हो गया, लेकिन पहले 500 रुपए होता था. आप लोग को अगर याद हो, वो एलईडी बल्ब्स बहुत महंगे होते थे. दैट अमाउंटेड टू दी सेविंग. सो अब वही चीज शिफ्ट हो गई, सोलर और ऐड हो गया. मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी के प्रोफेसर कुछ साल पहले कहते थे, 10 साल पहले, कि देखिए बिजली सरप्लस की स्थिति आई, एंड वी आर ग्रेजुअली एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट. आप उसको ध्यान मत दीजिएगा, जो बिजली कट जाती है वो इसलिए भी होती है हम पैसे नहीं देते. सो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में एनॉमली वो सीजनल मोमेंटली हो सकती है. तो ऑटोमेटिकली आपका कंजम्पशन बढ़ गया फॉर सम रीजन, मान लो कोल सप्लाई नहीं आ रही है, बारिश ज़्यादा हो गई, गीला हो गया, इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है, एंड सो ऑन. सो दीज वुड बी ऑपरेशनल हिकअप्स. इट इज बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट, इट इज रिजल्टेंट ऑफ द ऑपरेशनल हिकअप्स. अदरवाइज if you take the mean of production as well as consumption, we are largely in a state of surplus, and many of these states of our country are in an electricity surplus state. So a huge contribution should go to the policy initiatives that went on to सोलर पे शिफ्ट कर जाओ, अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाओ, और जो कंजम्पशन के आज की जो टीवी आती है और पुरानी टीवी थी, आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. सो as an engineer or as management professional, you should always think of product and process aspect, side of it. क्या कोई नई चीज बना सकते हैं? एक माइनॉरिटी रिपोर्ट्स एक मूवी है टॉम क्रूज की, कितने लोगों ने देखी? ओनली वन. नाइस मूवी, पुरानी है तो बहुत साल हो गए. तो मैं पहले से सोचता था कि ऐसा होता, बहुत बार आप जाइए रूरल एरिया में, छोटा ब्रिज है, ब्रिज टूट गया है, तो ओनली टू एडजस्ट दैट यू हैव टू ट्रैवल मे बी 3-4-5 किलोमीटर्स. रेलवे लाइन बंद है, तो आप सोचते हो कि उसके लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रुकना पड़ता है बहुत बार. तो ऐसा कोई डिवाइस होती है, हमारी गाड़ी को ऊंचा करती, फिर हम क्रॉस कर जाते हैं, नीचे आते चले जाते हैं. मैंने आई सॉ दैट मूवी, उसमें ये वो पीछे एक डब्बा लगाए रहता है और उससे वो उड़ जाता है. उड़ के अगर 7th फ्लोर पे उसको जाना है तो 7th फ्लोर पे जाके वो लोग, पुलिस उस समय की रेड करती है. फ्यूचरिस्टिक मूवी. अभी जापान में, यू ऑल मस्ट हैव रेड, अभी शुरू हो गया. अच्छा, व्हेन आई ट्राई टू टॉक टू सम ऑफ द इंजीनियरिंग फैकल्टीज ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सो दे सेड उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चांदी सोने में कन्वर्ट हो सकता है. मैं जब पढ़ता था वो केमिकल रिएक्शंस, आप लोग भी पढ़े होंगे जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही तो खेल है. और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल भी देते हैं हम लोग, तो हम कहें इसको यहां से इतना करके इतना कर दें तो ये हो जाए. तो मैंने टीचर से पूछा कि क्या सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं? माय टीचर सेड यस, बट द कॉस्ट विल बी वेरी हाई. उस गोल्ड की जो कॉस्ट है उससे बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी उस कन्वर्जन प्रोसेस की.
So as an engineer or management professional or any professional for that matter, can you think of having some new product? जैसे एक प्रॉब्लम हम लोग को बहुत आती थी, आपको भी आती हो, एग्जाम के टाइम में लगता सब कुछ है घुस जाता अंदर, और फिर अब एग्जाम दे दिए तो अभी निकल भी जाए, डिलीट मारो वो चला जाए वहां से, बिकॉज नेक्स्ट डे वाला कंटेंट फिर आना है। क्या ऐसा हो सकता है? कुछ ऐसा हो, वो कहते हैं घोल के पी जाए, तो कुछ ऐसा हो जो पी जाए, याद आ जाए, फिर उसको कंटेंट को फिर इरेज कर दे। अब कैन यू थिंक ऑफ सम प्रोडक्ट दैट एड्रेसेस द नीड ऑफ द आवर? सिमिलरली processes, and I'm telling you majority of the modern businesses are lying on reorienting the processes. So in process alteration, this is huge I mean value lies in processes. तो मान लो एक्चुअल क्लासरूम की जगह वर्चुअल क्लासरूम, एक जूम का ऐप बनाया और आप देखो, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट ऑल हैपेंड। प्रोसेसेस में चेंज हुआ, प्रोडक्ट्स में चेंज हुआ। आप देखो पहले इतना बड़ा शादियों में वो कैमरा, वीडियो कैमरा लेके चलते थे, वो कंधे पे रखते, दर्द भी करता होगा, टाइम भी लगता होगा, छोटे छोटे मोबाइल से उससे ज्यादा पावर के हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ द प्रोडक्ट alterations or process alteration to add value and fetch the value for your operational needs? So we have got to think of, and that is how this entire program has been designed, so that knowledge भी सिखाया जाए, skill भी impart किया जाए, because you are in a regular program. So 2 साल का से लेके 4 साल का program you all are exposed to. 4 साल का बीटेक है, 2 साल का मैनेजमेंट है, इमकॉम है, इकोनॉमिक्स है। सो यू आर एक्सपोज टू ऑल दीज, सो नॉलेज एंड स्किल, बट फॉर दैट मे मेक यू एन एंटरप्रेन्योर बट नॉट सस्टेन. सो what is extremely essential is to find out or to inculcate the motive dimension. Why at all am I planning to? Why at all am I thinking of a career in the field of entrepreneurship? Why am I starting an enterprise? Is it कि आज ये किया और उसको बेचा, हालांकि वो भी एक बड़ा प्रीवेलेंट बिजनेस मॉडल है। एक बार ये मार्केटिंग में काफी चला, व्हाट निरमा डिड टू सर्व, घड़ी डिड टू निरमा। एक लोकल ब्रांड क्रिएट करो, वो लोकल ब्रांड को ऑफरेट दे सर्वाइव। लेकिन छोटे ब्रांड्स, चिक शैम्पू आपको पता है 50 पैसे में, अभी मुझे पता नहीं है, 50 पैसे में उसका एक छोटा सैशे मिलता है। आई यूज्ड टू थिंक ऑफ कि भाई 50 पैसे में देखो, देयर आर 3 थिंग्स। एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा कॉस्ट ऑफ सेल। 3 पार्ट है। टैक्सेस अभी हम अलग से जोड़ रहे हैं। 50 पैसा फाइनल कस्टमर एंड पे है। मान लो उस पे अभी तो जीएसटी आ गया, तो आई डोंट नो, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ रेट ऑफ से 12%, तो 50 पैसे का 5 पैसा तो चला गया। अब 45 पैसे में कॉस्ट ऑफ सेल फ्रॉम C&F टू द फाइनल रिटेल एंड, मिनिमम 25-30%, मिनिमम 30%, तो 5 या 15 पैसे और निकाल लो, अब 30 पैसे बचे। अब इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन को रोक देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो, कुछ तो 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, कुछ तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आएगा भाई, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट। एंड सिंस यू हैव टेकन लोन, you are supposed to pay interest on that loan, so that also is going to come from this MRP only. मान लो 2-3 पैसे उसमें निकले, तो अब बचा 22, 23, 24, 25 पैसे। अब उसमें शैम्पू भी तो है, प्लास्टिक है, उसकी कटिंग है, पैकिंग है, और पैकिंग भी सिर्फ ये पैकिंग नहीं है कि हमको लगता है वो प्लास्टिक के सैशे में, वो सैशे इज इन अ
carton, that carton is in a master carton, then that transport cost, logistics 7 से 8% का वो भी कॉस्ट आती है, तो आप 10 पैसे उसके निकाल लो। तो फिर शैम्पू का दाम कितना होगा, मैं यही सोचता कि ये फिर शैम्पू इसको क्या 5-7 पैसे में बनता है, और फिर कुछ कमाता भी होगा भाई, 2-4-5 पैसे कमाएगा भी तो। So we have to understand that there has to have a certain degree of contribution to the land, labor, capital and entrepreneurship that you have invested into the venture. Our job is to sensitize it, as I said at the very beginning. Our job is to sensitize you, to make you aware, to motivate you. When I say motivate, I am referring to the term motive, which is the third part of entrepreneurial competency. And it is this motive aspect, if that is touched properly, appropriately, adequately, you will not just end up being a businessman. You will become an entrepreneur. And that will make you an entrepreneur, which will ensure sustenance of your business and your business model. I'm so very happy that such a huge event was organized across departments, across disciplines. There have been ample participation. There have been a very, very thoroughly and properly designed program. And this whole design would certainly take you to the path where we will very confidently be able to say to the entire world that we at University of Lucknow have been able to inculcate the trait of entrepreneurship, which is a remedy for majority of economic ills of the country and society. Thank you very much for providing me.